والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ حاضرین اکرام اور پردانشین خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی۔ آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، من جملہ سورۃ الکہف کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز جس واقعے کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کے ایک پیغام کو آج کے اس درس قرآن میں ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی بات کا آغاز ہم اس طرح سے کریں گے۔ دیکھیے سورۃ الکہف، اس سورۃ الکہف کے اندر جس واقعے کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس میں یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے کہ کس طریقے سے قدیم یعنی کہ پرانے زمانے میں مذہبی جبر قائم تھا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اس واقعے کے اندر، اس صورت کے اندر یہ رہنمائی کی گئی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں مذہبی جبر کس طریقے سے قائم تھا۔ مذہبی جبر یعنی کہ زبردستی اسی مذہب کے پیروکار بنو، اسی مذہب کو مانو، ایسے ہی رہو۔ اس زمانے میں جو مذہبی جبر قائم تھا، اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اشارہ کیا ہے۔ آج موجودہ ہمارے اس زمانے میں جہاں پر جمہوری طرز کی حکومتیں جو قائم ہیں، ان میں حکومت میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ عوامی الیکشن ہوتا ہے، عوام انتخاب کرتی ہے اور الیکشن کے ذریعے حکومت قائم ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ جبکہ قدیم زمانے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، اس صورت میں جن لوگوں کی طرف، جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جس زمانے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اس میں لوگ جو ہے حکومت کیسے بنتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ حکومتیں شرک کی بنیاد پر بنتی تھی۔ غور کریں گے تو پتا چلے گا حکومتیں کیسی بنتی تھی۔ شرک کی بنیاد پر حکومتوں کا قیام ہوا کرتا تھا۔ جیسے بادشاہ، کوئی بھی جب بادشاہ بننا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا اوتار لوگوں کے سامنے بتاتا اور یہ کہتا کہ تم میری سنو، میری مانو اور میرے سامنے سجدہ کرو اور میری ربوبیت کا اقرار کرو۔ اور لوگوں کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس بادشاہ کو اپنا رب، اپنا خدا یا خدا کا اوتار ماننا پڑتا تھا۔ تب اس بادشاہ کی بھی عبادت ویسے ہی کی جاتی تھی جیسے کہ کسی خدا، کسی رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے خلاف جانا، اس زمانے میں بادشاہوں کے خلاف ایک آواز، ایک لفظ بھی استعمال کرنا گویا کہ خدا کے خلاف آواز استعمال کرنے کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ گویا کہ بادشاہ زمین پر خدا کا انسانی روپ دھار کر آ گیا ہے، یہ مانا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی جس سے لوگ دوچار ہوئے تھے۔ عربی زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے، کہا جاتا تھا کہ الناس علی دین ملوکہم، یعنی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر قائم تھے۔ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر تھے، مطلب یہ کہ لوگوں کو اپنے بادشاہوں کے دین کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ پرانے زمانے کے لوگ، پرانے زمانے کو اگر ہم مختصر لفظ میں، قدیم زمانے کو اگر ہم مختصر چند لفظوں میں یہ کہیں تو حکومت جس کی مذہب اسی کا، حکومت جس کی مذہب بھی اسی کا، یہ جملہ بالکل صادق آتا ہے۔ وہ دور تھا اس زمانے کا، یعنی کہ کسی کو آزادی اس بات کی نہیں تھی کہ وہ حکومت کے مذہب کے علاوہ دوسرا کوئی بھی مذہب اختیار کرے، یعنی کہ اس زمانے کی جو حکومت ہوا کرتی تھی، اس کا جو مذہب تھا، ضروری تھا کہ وہ اسی مذہب کو پالن کرنے والا بنے، اس کے خلاف کسی دوسرے مذہب و ملت کو یہ مان نہیں سکتا تھا۔ پرانے زمانے میں غور کرو، یعنی کہ اگر کسی مقام پر آتش پرستوں کی حکومت تھی
تو اس جگہ کے رہنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی آتش پرستی کو قبول کرے، یعنی کہ آگ کو اپنا خدا سمجھے، اس کی پوجا کریں۔ اگر کسی جگہ پر حکومت عیسائیوں کی تھی، کرسچنوں کی تھی، تو اس زمانے کے رہنے والے اس حکومت کے باشندوں اور شہریوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی ضرور بضرور اسی بادشاہ یعنی کہ اسی عیسائیت اور کرسچنالٹی کو اختیار کریں۔ اگر اس کے خلاف ایک لفظ بھی یہ لوگ استعمال کرتے تو ان لوگوں کو جلا دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، ان کو ختم کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب تھے، یعنی کہ وہ حکومت، وہ بادشاہ جس مذہب، جس قوم، یعنی کہ وہ جس مذہب کا ماننے والا ہوتا تھا، لوگوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ اسی مذہب کو مانیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک دوسرا پہلو بتاؤں۔ قدیم زمانے میں جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، مبعوث کیا، وہ سارے کے سارے پیغمبر اسی مشکل سے مشکل ترین دور میں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا۔ یعنی کہ وہ پیغمبر جس زمانے میں اللہ رب العالمین ان کو بھیجتا تھا، حکومت جس کی ہوتی تھی، مذہب بھی اسی کا ہوتا تھا۔ ایسے زمانے میں یعنی کہ وہ حکومت جو ہوا کرتی تھی مذہب شرک پر ہوا کرتی تھی، اور پیغمبر توحید کو قائم کرنا، مذہب توحید کو قائم کرنا گویا کہ حکومت کے خلاف کھڑا ہونا ایک بغاوت اور ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور آج تک سنتے آ رہے ہیں اور سنیں گے بھی کہ پچھلے زمانے میں پیغمبروں کے ساتھ اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا گیا۔ آرے میں کاٹ دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو کھیڑ دیا جاتا، ان کے بچوں کو ماں کی پیٹ یعنی کہ ماں کی گود سے بچے کو چھین کر گرم گرم دیگوں میں ڈال دیا جاتا۔ کیسے کیسے واقعات، کیسے دل کو دہلا دینے والی باتیں ہم سنتے ہیں اور پڑھتے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کے برابر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کو تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی زمانے کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ ان کے زمانے میں لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ مذہب شرک تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگوں کا جو مذہب تھا وہ مذہب شرک تھا۔ اس کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مذہب توحید کو اختیار کیا۔ تب ان کو کس کس دور سے گزرنا پڑا، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، یہ ہم کو ساری تفصیل پتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ میں نے کہا پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے اس دور میں بھیجا تو بڑا ہی مشکل ترین دور تھا۔ اس کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، یہ ہم سے مخفی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیسے اور کیسے سلوک کیا گیا۔ اور ویسے ہی سورۃ الکہف جس کا انتخاب آج کے اس درس کے لیے ہم نے کیا ہے، اس سورۃ الکہف کے اندر بھی جن 7 نوجوانوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان کا بھی یہی زمانہ تھا، ان کے یعنی کہ مذہبی جبر کا زمانہ۔ مذہبی جبر سے مراد بادشاہوں کا جو دین تھا، زبردستی اسی دین کو، اسی بات کو ماننا لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہو جایا کرتا تھا۔ تو سامعین اکرام، میں آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ بتاؤں کہ مذہبی جبر کیا ہے۔ آپ سمجھتے چلیں، بات آسانی سے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مذہبی جبر کیا ہے، مذہبی جبر کیا تھا، اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی 3 الگ الگ جگہوں سے، 3 آیتوں سے، 3 الگ الگ باتوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مذہبی جبر کیا تھا۔ 3 باتیں انشاءاللہ ہوں گی، ایک ایک کر کے آپ غور کرتے چلو۔ مذہبی جبر کیا تھا اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھیں گے قرآن مجید کی 3 الگ الگ آیتوں سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس کو اگر ہم عنوان بھی دیں تو ایسے دے سکتے ہیں کہ اعتقادی آزادی، یعنی کہ عقیدے کی آزادی لوگوں کو نہیں تھی۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ البروج کے اندر فرمایا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس کو اصحاب الاخدود کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ نے تفصیلاً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یعنی کہ وہ بچے کا واقعہ
उस जमाने के जादूगर के पास जादू का इल्म भी सीखता था और एक राहिब के पास दीन का इल्म भी सीखा करता था। रास्ते में जाते हुए एक बड़ा जानवर आ गया और उसको पत्थर मारा। ये वाकया आपने सुना है। तो लिहाजा इसी वाक़ये की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया है कि उस जमाने में एक बच्चे ने क्या किया। ये सारा का सारा वाक़या आपके सामने है। इस वाक़ये की तफसील में न चाहते हुए मैं आपके सामने ये तज़किरा करता चलूं। उस जमाने में एक मामूली से एक छोटे से बच्चे ने मजहब शिर्क को छोड़ करके मजहब तौहीद को इख्तियार कर लिया। तो जैसे ही मजहब शिर्क को छोड़कर मजहब तौहीद को उस बच्चे ने इख्तियार कर लिया, कबूल कर लिया, उस जमाने की हुकूमत उसके खिलाफ हो गई। एक मामूली सी बच्चे के पूरी हुकूमत उसके खिलाफ हो गई। यानी कि एक बच्चा भी अपना अकीदा ये नहीं रख सकता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, उसी के सामने सजदा करना है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ऐसे ख्यालात और तसव्वुरात भी एक बच्चा भी नहीं रख सकता था। पूरी हुकूमत उस एक बच्चे के खिलाफ हो गई और उसको एक बहुत बड़ा मजमा जमा किया गया। बहुत बड़े मजमे के साथ लोगों को सामने उस बच्चे को सजाए मौत दी गई। आपको पता है ना, उस बच्चे को सजाए मौत दी गई, कत्ल कर दिया गया। वो भी कैसे? भरे मजमे में पूरे लोगों के सामने खड़ा करके बरसरे आम उस छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया गया। और फिर इस मंजर को वहां पर खड़े होकर लोगों का एक बड़ा जम्मे गफीर ने देखा, उस मंजर का नजारा किया। तो जैसे ही उन्होंने देखा वो उनके दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिदायत देना मकसूद था। लोगों ने पुकार उठा, ये कौन सी चीज थी इस मामूली से बच्चे के दीन को मरने के दम तक जो है उसको हिला ना सकी। लोगों के दिलों में जो है एक खौफ, एक वलवला पैदा हो गया और लोग वहीं पर पुकार उठे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर। हुकूमत ने देखा ये हमारी रियाया, ये हमारे लोग हमारे खिलाफ जिस मजहब को हम मान रहे हैं, जिस मजहब को, जिस खुदा को हम पूजते आ रहे हैं, उसके खिलाफ किसी और खुदा को ये लोग मान रहे हैं। ये बात इन लोगों को, उस हुकूमत को इतनी ज्यादा खिलाफ लगी, इतना ज्यादा गुस्सा आया। तफसील आपने पढ़ा, उतिला अस्हाबुल उखदूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारा मंजर खींच कर रख दिया है। एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई और उसमें आग लगा दी गई और दहकती हुई अंगारों के शोलों में सारे के सारे सिर्फ एतकादी कोई अमल उन्होंने नहीं किया था, ईमान का अमलन उन्होंने कोई काम नहीं किया था, दावत और तबलीग का काम भी उन्होंने नहीं किया था। स्पॉट पर उसी वक्त, उसी घड़ी, उसी लम्हा उन लोगों ने कहा था अल्लाह की ज़बात पर हमने ईमान लाया। तो ये बात उन लोगों को इतनी ज्यादा नापसंदीदा लगी। हम हुकूमत के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं, इन लोगों का अकीदा बिगड़ गया है। ये सोचकर जो है खंदक के अंदर दहकती हुई अंगारों के शोलों में उन लोगों को झोंक दिया गया, जला दिया गया। जिंदा उन लोगों को, सारे के सारे लोगों को जला दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन लोगों का गुनाह और कोई नहीं था, कुछ भी जुर्म उन्होंने नहीं किया था। ना तो हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी, ना तो जिस दीन के वो मानने वाले थे उस दीन की दावत और तबलीग का काम किया था। अगर किया था तो बस अपने माइंड को उन्होंने चेंज कर लिया, यानी कि अपनी सोच को सही रुख पर लाने की इजाजत भी लोगों को उस जमाने में बिल्कुल नहीं थी। कुरान मजीद हमको इसकी तफसील बताता है। बात समझ में आई ना? यानी कि उन लोगों का गुनाह क्या था? उन लोगों का जुर्म सिर्फ यही था कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान लाए, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है आग में झोंक दिया गया। जिसी की तरफ इशारा करते हुए सूरतुल बुरूज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अय्युमिनू। इन्होंने, उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने ईमान लाया बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर, जिसकी वजह से उनको अंगार में जलना पड़ा। अपनी बीवी, बच्चे, खानदान, कबीले वालों के साथ पूरे के पूरों को जो है दहकती हुई अंगार के शोलों में झोंक दिया गया। तो तीन बातों का तज़किरा हम करेंगे, मैंने कहा था। किसके लिए? यानी कि उस मजहबी जबर, मजहबी जबरदस्ती क्या था? सबसे पहला एतकादी जबरदस्ती, यानी कि तुम अपना अकीदा भी चेंज नहीं कर सकते, उसकी मिसाल। अब आइए दूसरी मिसाल मैं आपके सामने बयान करूं। अमल की आजादी, अमल करने की आजादी बिल्कुल नहीं थी मेरे भाई।
अमल करने की आज़ादी भी बिल्कुल नहीं थी। अगर आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे, हमारे पैगम्बर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस ज़माने में बेअसत हुई, उस ज़माने में भी बिल्कुल वो ज़माना अपनी हकीकत के एतबार से मजहबी जबर का ज़माना था। सूरतुल लैल वगैरह अगर आप पहली सूरत कौन से पहली आयत कुरान मजीद की इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरतुल अलक़, इस सूरत का अगर हम मुताला करेंगे, पढ़ते हुए जाएंगे, वहां पर हमें मिलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करते हुए पूछता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हवाले से, क्या तुम लोगों ने उस आदमी को नहीं देखा? अरअयतल्लज़ी यन्हा, क्या तुमने उस आदमी को नहीं देखा जो मना करता है जबकि बंदा नमाज पढ़ता है? नमाज पढ़ने की इजाजत खुद रसूलुल्लाह को नहीं थी, कहां से उनके मानने वालों को हुआ करती थी। आपने पढ़ा होगा वाक़ियात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत के हवाले से मैं बताता हूँ, काबतुल्लाह के सामने गए और अल्लाह की इबादत करते हुए सजदा रेज़ जैसे ही हुए, लोगों ने क्या किया, ऊंट की जो है ओझड़ी, यानी कि जिसके अंदर सारा का सारा ऊंट की गंदगी से भरी हुई ओझड़ी, उसकी अंतड़ियां बोटियां जिसको कहते हैं, लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में डाल दिया, जिसकी वजह से सजदे से सर उठाना मुश्किल हो गया। और दूसरी जगह आपने पढ़ा और सुना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में रुकू के बाद सजदे को जा रहे थे, किसी एक नाहिंजार ने आकर क्या किया, अपनी चादर को लपेट कर आपके गर्दन में डालकर इतना जोर से मरोड़ा, यहाँ तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान बाहर निकल गई और आंखें फटकर करीब था कि बाहर निकल जाएं। क्या गुनाह किया था अल्लाह के नबी ने, कौन सा पाप किया था? अल्लाह की इबादत करते थे। मैं आपको बताऊं, अमल की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। ये तो 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं, वरना 2000, 3000, 4000 साल पहले के वाकयात अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा दिल अपनी दिल की जगह पर नहीं रहेगा। सामईन इकराम, हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को कैसे दौर में लाकर खड़ा किया। अभी मैं बताऊंगा आपके सामने, यानी कि मजहबी जबर कैसे था। एक तो लोगों को एतिकादी आजादी नहीं थी, और दूसरा लोगों को, इंसानों को अमल की आजादी भी बिल्कुल नहीं थी। तीसरे दर्जे पर मैं बताऊं, तीसरा दर्जा ये है तबलीग की आजादी। जो दीन, जिस मजहब के वो लोग मानने वाले हैं, इसकी भी बिल्कुल आजादी लोगों को नहीं थी। उसके लिए मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह यदऊहु कादू यकूनूना अलैहि लिबदा। अल्लाह ने फरमाया, जब बंदा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, लोगों के सामने रब का पैगाम बुलंद करता है, तो लोग उसको मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, ऐसे टूट पड़ते हैं गोया कि उसने कोई जुर्म किया हुआ है। तो सामाईन इकराम, इसके लिए भी बेशुमार मिसालें आपने पढ़ी होगी और आपने सुना होगा। खुद हजरत अबू बकर का तज़किरा मैंने कई मरतबा आपके सामने किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतना ही कहा था लोगों के सामने, इतना मारा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश होकर गिर पड़े थे। और फिर वैसे ही हारिस बिन अबी हाला का नाम आपने सुना है? आपको बताएं कौन थे ये? यही वो पहले शख्स थे जिनके ऊपर जो इतनी तलवारें पड़ी, मर्द हजरात में सबसे पहला खून था जो इस्लाम की राह में इनका बहाया गया। क्या गुनाह? काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। जिस मजहब को मान रहे हैं उसकी तबलीग बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको जो है उसका ऐलान नहीं कर सकते। बेशुमार वाक़ियात आपने सुना और पढ़ा होगा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मजहब की तबलीग के लिए जब बाहर रास्तों पर निकलते तो आपके साथ कैसा सलूक किया गया। ताइफ की गलियों में पत्थरों से मार मार के आपको लहूलहान कर दिया गया। बेशुमार वाक़ियात हैं सामाईन इकराम। बस वाक़ियात की तफसील में न जाते हुए मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में तबलीग की आज़ादी भी बिल्कुल नहीं थी। तो पता चला तो उस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कदीम जमाने में जब पैगम्बरों को भेजा, जमाना कैसा था?
मजहबी जबर कहते हैं जबरदस्ती, मजहबी जबरदस्ती का जमाना था। यानी कि उनके बड़े लोग, उनके सरकश लोग, उस दौर के उलमा, उस दौर के हुकूमती सतह के लोग जिस मजहब को मानते हैं, जिस कौम का पालन वो करते आ रहे हैं, उसी मजहब को मानना, उसी बातों को मानना, अगर उसके खिलाफ अगर अपना अकीदा भी दुरुस्त कर लिया, उसके खिलाफ अपना अमल भी करके दिखाया, उसके खिलाफ कोई और मजहब की दावत तबलीग करके दिखाई, तो उनकी जिंदगी जहन्नम बना देती इस दुनिया के अंदर। जैसे कि असहाबुल उखदूद का वाकया, और फिर वैसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का वाकया, अबू बकर सिद्दीक वगैरह की दावत तबलीग का वाकया हमारे सामने मौजूद है। अब यहाँ पर आज के इस दर्स में सूरतुल कहफ की जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं असहाबे कहफ यानी कि गार वालों का किस्सा अल्लाह ने जो बयान किया, ये गार वालों का जमाना, ये असहाबे कहफ का जमाना भी बिल्कुल उसी टाइप का जमाना था, यानी कि मजहबी जबर का जमाना था। अब वहां पर क्या हुआ, इस वाकये की सारी तफसील में न जाते हुए बस मैं आपको इतना बता दूंगा, उस जमाने में जहां पर वो लोग रहा करते थे, चंद लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे थे, उस दौर के सही मुसलमान थे। अब वहां पर उन लोगों को शिर्क बिल्कुल मंजूर नहीं था, खुलकर कह नहीं सकते, अमल नहीं कर सकते, कुचल दिया जाता, जला दिया जाता, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। अब वहां पर अपने ईमान को छुपाते हुए वो लोग वहीं पर रह रहे थे। एक दिन रूम का बड़ा बादशाह दकियानूस के सामने आ रहा था। दकियानूस ने सोचा अब हमारा बड़ा बादशाह जिसको लोग अपना रब मानते थे, मलिकुर रूम जिसको वो लोग अपना रब मानते थे, रुबूबियत की हद तक उसकी इबादत किया करते थे, बहुत बड़ा जलसे जुलूस का दिन बनाया और वहां पर जो है बहुत बड़ा त्योहार बनाया। लोग उसकी आमद में, उसके स्वागत के लिए इंतजार में खड़े हो गए। जैसे ही मलिक रूम का बादशाह मजलिस के अंदर हाजिर हुआ, पूरे के पूरे लोग उसके लिए झुक गए और जाकर तख्त पर बैठा, पूरे के पूरे लोग सजदे में गिर पड़े। सामाईन, यही वो वक्त था अहले ईमान का। एक तरफ उनका दिल उनको बता रहा था ये तो तुम जैसा एक इंसान है, ये भी खाता और पीता है, पेशाब और पाखाने की जरूरत इसको भी है, बीवी बच्चों का जरूरतमंद ये भी है, इसके सामने हम कैसे झुके? झुकना है तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के सामने, इबादत करना है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अब यहाँ पर अगर हम झुकेंगे तो हम रब को इनकार करने के बराबर हो जाएगा। वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरहदी दुनिया तक एक मिसाल को कायम करना था। उनके दिलों को इतनी हिम्मत आई, गौर करके देखो, आज के जमाने में डंके की चोट पर किसी जगह पर भी खड़े होकर माइक सेट के जरिए से आप ऐलान कर सकते हैं, जिस जबान में चाहे अरबी जबान हो, चाहे उर्दू जबान हो, चाहे इंग्लिश या कन्नड़ जबान में ही क्यों ना हो, डंके की चोट पर खड़े होकर हम लोगों को इस्लाम की तरफ बुला सकते हैं, उनके खिलाफ कह सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उस दौर को जरा सोच करके देखो, जिस दौर में असहाबुल कहफ इन नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खड़ा किया था, मजहबी जबर का जमाना था। एक लफ्ज भी हुकूमत वक्त के खिलाफ कहना अपने आप की तिक्का बोटी करवा लेने के बराबर था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को ऐसी हिम्मत दी, ऐसी ताकत दी। खुद कुरान मजीद के अल्फाज है, मैं आपके सामने सुनाता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। सूरतुल कहफ की इब्तिदाई आयतें, आयत नंबर 14 मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, उनके दिलों को जो है ढारस बंधाई। और फिर उसके बाद जब उन्होंने खड़े होकर खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, हमारा रब तो वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, उसके सिवा हम किसी इलाह को नहीं पुकारेंगे। अगर ऐसा करें तो बाईद अज़ अक़ल बात होगी। तो सामाईन इकराम, यही वो वक्त था जब उनकी आजमाइश का वक्त था। खड़े हो गए और उन लोगों ने देखा, पूछा क्या बात है? सब के सब मलिकुर रोम के सामने सजदे में गिर पड़ गए, लेकिन तुम लोग वैसे ही खड़े हुए हो। तो उन लोगों ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसका तज़किरा किया, जिसका नक्शा खींचा है, उन्होंने कहा कि
रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ मिन दूनिहि इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। ये हमारा रब वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, इसको तुम रब समझकर इसके सामने झुक रहे हो। हम कैसे इसके सामने झुके? हमारा रब वो है, झुकने के लायक तो वो है जिसने आसमानों को बनाया, जिसने जमीनों को बनाया, उसके अलावा कोई नहीं जिसके सामने हम झुके। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर हम ऐसा करें तो हम खुद बेवकूफ होंगे, इसलिए कि हम जैसे इंसान के सामने झुककर हमने बता दिया। फिर उसके बाद जो हुआ वाकया आपने सुना और पढ़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकये की तफसील जाने, उठाओ सूरतुल कहफ। आज की इस रात आपको जागना है, आपको कुरान मजीद की तिलावत करना है, तो यहाँ पर तिलावत के साथ साथ सूरतुल कहफ, तो कल तो जुमा भी है, उसके लिए तो सूरतुल कहफ की तिलावत भी हम करेंगे। पढ़ो इसका तर्जमा, इसकी तशरीह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी तफसील को वहां पर बयान किया है। और फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, इनको कैदो बंद की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आदमी ऐसा हुआ कि उन लोगों को वहां पर जेल से रिहाई कर दिया। वो लोग वहां से निकले, अपने ईमान को छुपाने के लिए वहां से गए और अपने ईमान को छुपाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत के मुताबिक एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए जिसमें एक गार था। उस गार के अंदर इन लोगों ने जाकर पनाह ली। उस गार को कहते हैं गुफा, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, गार को अरबी में कहते हैं कहफ, अस्हाबुल कहफ, गार वाले। कुरान मजीद में जो सूरत है इसका नाम क्या है? सूरतुल कहफ, यानी कि गार की सूरत। सूरत का नाम क्या है? गार। गार वालों का तज़किरा यहाँ पर अल्लाह ने किया। अगर हम इस वाक़ये को बतौर वाक़या, बतौर स्टोरी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो महज एक स्टोरी में अटक कर रह जाएंगे। हमारे लिए कोई मैसेज इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ तारीखी पहलू को हम लोग उजागर करते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि इस वाक़ये का एक तज़कीरी पहलू भी हम निकालें और गौर करें हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़ये का तज़किरा करके कौन सी बात बयान करना चाहा है। अगर हम गौर करना चाहें तो हमें पता चलेगा। तो सामाईन इकराम, इतने चंद बातों से हमें पता चल गया कि यहाँ पर मजहबी दौर, मजहबी जबर क्या था, पता चल गया ना। अब आइए हम गौर करते चले, यानी कि कंपेयर करते हुए उस जमाने से आज के जमाने का मवाजना करते हुए अगर हम देखें तो हमको पता, अरबी जबान का जो एक मकौला है, कहा जाता है वो बिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, वो बिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया। अगर किसी चीज को, किसी चीज के बारे में परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो उसकी अपोजिट चीज को जानेंगे तो खुद ब खुद वो चीज समझ में आ जाएगी। समझ रहे ना? अपोजिट चीज को देखेंगे। अगर हम उस जमाने को, उस दौर को समझना चाहें, अगर आज के हमारे इस दौर को, इस जमाने को समझना चाहें, उस जमाने को देखो, उस जमाने की तारीख पढ़ो, तो तुमको आज का अपना जमाना समझ में आ जाएगा। तो तुम शिकायत की जिंदगी गुजार रहे हो, शिकवा की जिंदगी गुजार रहे हो या शुक्र की जिंदगी गुजार रहे हो, ये तफसील आपके सामने वाज़े हो जाएगी। मैं आपके सामने बताऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन वाक़यात का तज़किरा करके हमको ये बताना चाहा है, अगर हम आज के हालात का उस कदीम जमाना, उस पुराने जमाने के हालात से कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे, तो तब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान अजीम का पता चलेगा कि कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है हम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस दौर में हमको लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि इस नए दौर को पहुंचकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे, ना कि शिकायत। ऐसे जमाने में अल्लाह हमको रखा, कैसा फितनों का दौर, कैसा ऐसा दौर, वैसा दौर, पता नहीं है कितने किस्म के अल्फाज आज के इस जमाने को हम लोग अदा करते हैं। सामाईन, जरा गौर करके देखो, खुद अल्लाह के नबी का जमाना, अस्हाबुल कहफ का जमाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना और दूसरे पैगंबरों का जमाना, जहां पर उनको सताया गया, हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, उस जमाने को आप और आज के जमाने से गौर करके देखो, कंपेयर करके देखो, हमें पता चलेगा कि कैसा नेमतों वाला आज का जमाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे दौर में लाकर खड़ा कर दिया। अगर कहीं पर किसी दूसरों की तरफ से जर्रा बराबर भी परेशानी हुई, जर्रा बराबर भी धक्का लगा, अल्लाह की जात से शिकवे शिकायत
शिकायत हम लोग करने लग जाते हैं, आज के दौर को बुरा भला कहने हम लग जाते हैं। जरूरत इस बात की है, इस दौर को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जमाने में हमको खड़ा किया, इसका शुक्र अदा करना हमको जरूरी हो जाता है। कैसे? अगर तारीख में वही दौर कंटिन्यू हो जाता, गौर करो मैं आपको बताऊं, अगर तारीख में, हिस्ट्री में वही दौर आज भी रहता जो कि उस जमाने में था, यानी कि लोगों के लिए इस बात का जरूरी हो जाता कि बादशाह, हुकूमत जिस दौर की होती है, जिस मजहब की वो मानने वाली होती है, उस दौर की पब्लिक भी उसी मजहब को मानना होगा। तो बताओ अपने दिल पर हाथ रख के, आज हम मजहब इस्लाम के मानने वाले होते, ये मस्जिदें हमारी होती, ये मदरसे हमारे होते, ये दावत व तबलीग का काम हमारा होता, बताओ पूरा का पूरा ठप होकर रह जाता। बावजूद इसके कि मुसलमान, मायने कि कहे से कहां तक मुसलमान होते, आज खुल्लम खुल्ला मजहब इस्लाम की दावत व तबलीग हम कर सकते हैं। तो सामाईन इकराम, मैं बताऊं आपके सामने, आप गौर करो, खुद हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर आज हुकूमत किसकी है, हुकूमत पर कौन काबिज है, और जो लोग जिनकी हुकूमत है उन लोगों का मजहब क्या है, उनका धर्म क्या है। मजबूरन चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हम लोगों को मजबूर होते हुए, इसलिए कि जमाना मजहबी जबर का होता, अगर वही दौर कंटिन्यू होता तो हमको ना चाहते हुए भी मूर्तियों की पूजा करना पड़ता है, नहीं है? कैसे कैसे तवहुमात में अपनी जिंदगी गुजारना पड़ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे दौर जदीद में लाकर खड़ा किया, खुल्लम खुल्ला हम दावत इस्लाम का काम कर सकते हैं। अपने मजहब की एतकादी, हम खुद एतकाद नहीं बल्कि अपने अकीदे की दावत तबलीग दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं, वो भी छुपे छुपाए नहीं बल्कि डंके की चोट पर ये काम हम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आ रहे हैं। तो सामाईन इकराम, अगर हम गौर करें तो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रब्बुल आलमीन की रहमत से ऐसे दौर में हम खड़े हुए हैं। अगर गौर करें तो ऐसे लगता है कि कुरान मजीद में अहले ईमान की ज़बानी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, गौर करें, अगर हम गौर करें तो हमको ऐसे लगता है, ऐसे महसूस होता है कि कुरान मजीद के अंदर ईमान वालों की ज़बानी, यानी कि पुराने जो ईमान वाले थे, उस जमाने के कदीम जो अल्लाह वाले थे, अपने आप को ईमान में बचा कर रखने वाले वो लोग, अल्लाह के वो मुत्तकी बंदे, अल्लाह के वो परहेजगार बंदे, अल्लाह के वो प्यारे बंदे, उनकी ज़बानी जो दुआइया कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, क्या है? रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना। ये दुआएं अगर हम पढ़ते चले जाएं तो ऐसे लगता है गोया कि ये दुआ उस जमाने में उन लोगों ने की थी, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो दौर हमको दिया है, उनकी दुआओं की कबूलियत आज हो रही है। उनकी दुआओं की कबूलियत के दौर में हम लोग रहकर दौर को बुरा भला कहना, हुकूमत के वक्त के खिलाफ बगावत करना, बागी बनना, दाई बनने के बराबर, दाई बनना छोड़कर बागी बन के अपनी जिंदगी गुजारना, बताओ ये कहां तक सही है? आपने गौर किया, उस दौर के पुराने अल्लाह वाले, अल्लाह के नेकोकार बंदों ने दुआ किया था, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा, ऐ हमारे रब हम पर उस तरह का बोझ न डाल जिस तरह का बोझ हमसे पहले वाली उम्मतों पर तूने डाला था। उन लोगों ने दुआ किया था, उन लोगों को पता था कैसे उन लोगों को सताया गया, कैसे उन लोगों को मारा गया, कैसे उन लोगों की माओं की गोदों से बच्चों को छीन कर जला दिया गया, कैसे अम्मा आसिया को बड़ी पहाड़ की चट्टान से लाद कर उनको खत्म कर दिया गया है, नहीं है? कैसे कैसे दिल को दहला देने वाले वाकयात हैं। उसको पढ़ा, उसके बाद उन लोगों ने दुआ किया, ऐ अल्लाह पिछली उम्मतों को जो बोझ तूने डाला था ऐसा बोझ हम पर न डाल। लेकिन उस जमाने में वो दुआ कबूल होती हुई नजर नहीं आई। आज हमें ऐसे लगता है गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम जैसी अजीम नेमत को हमारे ऊपर लागू करके उस दुआ की कबूलियत के दौर में हमको लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खड़ा किया है। तो सामाईन इकराम, आज सबको एतकादी आजादी हासिल है, अमल की आजादी हासिल है, तबलीगी आजादी हासिल है, जो कुछ भी चाहे जैसे चाहे हम काम कर सकते हैं। अगर हम गौर करें
अगर हम गौर करें, आज हमसे मजहबी जबर को अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और उसके करम से उठा लिया गया, और जो है उस बोझ को भी हमसे उठा लिया गया जो हमसे पहले ईमान वालों के ऊपर लाद दिया गया था। आज हमको अपने ईमान को बचाने के लिए छुप छुपा कर, जैसे कि अल्लाह के नबी दारे अरकम में तबलीग करते थे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, उस दौर को हमसे उठा लिया गया। आज दावत इस्लाम के लिए उस दौर को भी अल्लाह ने हमसे उठा लिया गया। अपने ईमान को बचाने के लिए किसी गार में अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी, गार वाले दौर को भी अल्लाह ने हमसे उठा लिया, बिल्कुल ऐसे वाज़ेह और खुल्लम खुल्ला दौर में लाकर खड़ा किया। तो सामाईन इकराम, जहां पर हम अपने अकीदे की दावत तबलीग कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत खास को, जो कि इस दौर में अल्लाह ने हमको खड़ा किया, इसको गौर कर ले, कोई भी बंदा इस बात को गौर कर ले, इस एक नेमत को महसूस कर ले, तो अब यहाँ पर हमारा दिल, कोई भी इंसान का जो इस नेमत को नेमत के तौर पर महसूस कर लेगा, ऐसे बंदे का दिल ऐसे खुशी से, शुक्र के जज्बात से सरशार हो जाएगा, भर जाएगा, और हमारी आंखों से एक सैलाब उमड़ता हुआ निकल जाएगा। क्यों? अल्लाह, उस जमाने के नेकोकार बंदों को तूने जो चीज नहीं दिया, आज हमको वो चीज दे दिया। अल्लाह, अबू बकर तेरा वो बंदा है जिसने बस काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, लोगों ने उसको इतना मारा, इतना मारा। अल्लाह, तेरी वो मामूली सी बंदी सुमैया, क्या उसने गुनाह किया था? लोगों ने उसको इतना सताया, इतना सताया, 2 टुकड़े उसके कर दिए गए, बच्चे, जवान बच्चे और उसके शौहर के सामने पूरे कपड़ों को निकाल कर नंगा कर दिया गया, 2 ऊंटों को बांध कर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह, उस जमाने के नेक वो लोग, हजरत इब्राहिम को अंगार में डाल दिया गया, है नहीं है? अल्लाह के फजल से आग तो फूल हो गई, वो बात की बात है, लेकिन लोगों ने क्या किया, कैसे सताया, हजरत मूसा के साथ कैसे सुलूक हुआ, हजरत ईसा के साथ कैसे सुलूक हुआ, उनके मानने वालों के साथ। अभी मैंने आपके सामने अस्हाबुल उखदूद का वाकया पढ़कर सुनाया, यानी कि हुआ क्या, उन लोगों को भी सिर्फ उन्होंने ये कहा अल्लाह वो है जो कि आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, बस इस एक गुनाह और जुर्म की पादाश में उन लोगों ने बहुत बड़ा खंदक, बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर उसके अंदर आग जलाकर दहकती हुई आग में इन लोगों को झोंक दिया। अगर बंदा इस बात को महसूस कर ले, अल्लाह, सिर्फ तुझे पुकारने की वजह से लोगों को जला दिया गया, आज मैं खुल्लम खुल्ला लाउड स्पीकर के जरिए से तेरी दावत तबलीग का काम कर सकता हूं, लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला। वो भी कैसे? तो सामाईन इकराम, हम देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक दौर और ये प्रिंट मीडिया का दौर, ऐसे दौर में अल्लाह ने हमको लाकर खड़ा किया, और आज हमारी दावत तबलीग को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, है नहीं है? खुल्लम खुल्ला कुरान मजीद की आयतों का प्रचार किया जा रहा है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि आगे बढ़कर एक जुमला भी कहें। आज ये बड़ी बड़ी मस्जिदें, आज ये बड़े बड़े मदरसे, आज ये इस्लामी मरकज कायम होकर इसके अंदर कामयाबी के साथ चल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? किसी किस्म की रुकावट नहीं, कोई खिलाफ कहता भी है अपने घर में कह लेता है, सामने आकर खड़े होने की किसी को मजाल नहीं। ऐसे दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको लाकर खड़ा किया। तो सामाईन इकराम, आज हम मुसलमान गौर कर रहे हैं ना, मुसलमानों के कितने टीवी चैनल हैं जिसके जरिए से हर घर के अंदर दावत इस्लाम को पहुंचाया जा रहा है, और फिर वैसे ही बेशुमार बातें हैं, अगर मैं बताता चलूं तो एक एक करके बता सकता हूं, लेकिन बस इतनी चंद बातों को बताकर आपके दिल दिमाग में इस बात को बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी की सारी चीजों को नेमत के तौर पर हमको दिया है। अगर हम इस दौर में रहते हुए इस दौर को, उस दौर को लेकर गाली गलौज करेंगे, हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो बताओ ये बेवकूफी और अहमकी होगी नहीं होगी? बगैर सोचे समझे कहें तो कुछ भी कह सकते हैं, हाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम होना, ये हम इनकार नहीं कर रहे, इस बात से होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे हालात लाएगा तो जरूर इंशाअल्लाह ये होकर रहेगा। इसी के लिए हमारा हदफ बनाना, उसी के लिए पीछे पड़ जाना, असल जो काम अल्लाह ने हमको दिया दावत तबलीग का, उसको छोड़ देना, ये कैसा है? कितने बड़े मुजरिम हम बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, है नहीं है? तो ये दौर अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ
طرف سے اس نعمت کو نعمت اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ہر بات کو بھی، اللہ رب العالمین کے بیان کردہ ان واقعات کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پیغام اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں پر یہ واقعہ محض واقعہ نہیں ہے، اصحاب الکہف کا واقعہ ہو یا کوئی بھی واقعات پرانے زمانے کے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، یہ محض صرف واقعات کی حد تک نہیں کہ پڑھو اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس میں پھنس کر رہ جائے، نہیں، بلکہ ان واقعات کے ذریعے سے اپنے ایمان کی غذا بنائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے آپ کو داعی بنانے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان بحیثیت مسلم ایک داعی ہے، ہر عورت بحیثیت مسلمہ ایک داعیہ ہے۔ اس کی چال ڈھال، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سفر، ہمارا ہم میں کا ہر ایک حرکت گویا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ دوسروں کے اوپر ہم کو بتانا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دور میں اللہ نے ہم کو لا کھڑا کیا، کیسے کیسے مواقع ہمارے سامنے موجود ہیں، ان مواقع کا استعمال کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں، دین کو ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت عظیم کو پہچان کر شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کے واقعہ، اصحاب الکہف کے، سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا جو واقعہ مذکور ہے اس کی روشنی میں بتانا تھا۔ بس پیغام کو آپ کے سامنے دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی روشنی میں جو کچھ بھی باتیں ہم نے خصوصاً آج کے اس درس میں سنی، ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔